Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. वाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 10 और श्लोका क्रमांक 23 पे पहुंचे हैं। तो आज हम आगे देखते हैं। सवा अयं यत्पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जित मातरिश्वनः पश्यन्ति भक्त्या उत्कलिता अमलात्मना ना नन्वेष सत्वं परिमार्शितुम अर्हति। तो इसका अनुवाद ट्रांसलेशन एंड पर्पट बाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। Translation: Here is the same Supreme Personality of Godhead whose transcendental form is experienced by the great devotees who are completely cleansed of material consciousness by dint of rigid devotional service and full control of life and senses. And that is the only way to purify existence. तो यहाँ पे हिंदी में ये वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जिनका दिव्य रूप वो लोग अनुभव कर सकते हैं, वो भक्त अनुभव कर सकते हैं जो पूरी तरह से अपनी भौतिक चेतना से शुद्ध हुए हैं। और वो कैसे अपने बहुत ही क्या कहते गंभीर भक्ति की सेवा में भक्ति सेवा करते हुए और अपने पूरी तरह से इंद्रियों और अपना पूरा जो जीवन है उसको नियंत्रित करते हुए और केवल यही एकमात्र क्या कहते पथ है जिससे हम अपना जो पूरा जो अस्तित्व है उसका शुद्धिकरण कर सकते हैं, अपना पूरा एग्जिस्टेंस। तो पर्पट हरे कृष्णा कितना 35 I'll read the पर्पट बहुत अच्छा है। तो as it is stated in Bhagavad Gita, the Lord can be known in his real nature by dint of pure devotional service only. So it is stated here that only the great devotees of the Lord who are able to clear the mind of all material dust by rigid devotional service can experience the Lord as he is. Jitendriya means one who has full control over the senses. The senses are active parts of the body and their activities cannot be stopped. The artificial means of the yogic process to make the senses inactive has proved to be an abject failure, even in the case of great yogis like Vishwamitra Muni. Vishwamitra Muni controlled the senses by yogic trance, but when he happened to meet Menaka, a heavenly society woman, he became a victim of sex, and the artificial way of controlling the senses failed. But in the case of a pure devotee, the senses are not at all artificially stopped from doing anything, but they are given different good engagements. When the senses are engaged in more attractive activities, there is no chance of their being
attracted by any inferior engagements. In the Bhagavad Gita, it is said that the senses can be controlled only by better engagement. Devotional service necessitates purifying the senses or engaging them in the activities of devotional service. Devotional service is not inaction. Anything done in the service of the Lord becomes at once purified of its material nature. The material conception is due to ignorance only. There is nothing beyond Vasudev. The Vasudev conception gradually develops in the heart of the learned after a prolonged acceleration of the receptive organs. But the process ends in knowledge of accepting Vasudev as all in all. In the case of devotional service, this very same method is accepted from the very beginning. And by the grace of the Lord, all factual knowledge becomes revealed in the heart of a devotee, due to dictation by the Lord from within. Therefore, controlling the senses by the devotional service is the only and easiest means. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatam aham vande Shri Guru Dinatarinam Paramanandamadam Shri Chaitanya Ishwaram. हरे कृष्णा। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब हर एक श्लोक का जो भागवतम या फिर जो शास्त्र है, हर एक वाक्य, हर एक शब्द हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी तरह से ये भी श्लोका, अगर हम इस श्लोका में देखेंगे, जो सुखदेव गोस्वामी और शौनक ऋषि अभी ये जो वो लोग संवाद कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को, कि केवल जो भक्ति है वो एक सरल मार्ग है जिससे हम भगवान को जान सकते हैं। अभी जैसे हम लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिनों में हनुमान जयंती आने वाली है। तो अभी देखिए, हनुमान जी जो है वो एक वानर का शरीर में है, तो फिर भी वो राम दूत कहलाते हैं, राम के सबसे उच्च कोटि के भक्त कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने कुछ ज्यादा शास्त्र, वो एक्चुअली बहुत ही इंटेलिजेंट है, लेकिन हम जब हनुमान जी के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, तो सबसे उनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो उभर के आता है, जो वो क्या है? भक्ति। तो भक्ति एक ऐसी चीज है कि जो भगवान को आकर्षित करती है और भगवान को एकदम आसानी से हम भगवान को जान सकते हैं। जैसे अभी श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वो भगवद गीता का श्लोका इनडायरेक्टली बता रहे हैं। वो क्या है? भक्त्या माम अभिजानाति यावन यस्तास्मि तत्वतः ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विशेषले तद अंतरम। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि केवल भक्ति, जो भक्त है वो मुझे जान सकता है तत्वतः, मतलब मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरे कार्य क्या है, मुझे क्या पसंद है, मतलब तत्वतः। तो ये केवल कौन जान सकता है? भक्त जान सकता है। भगवान नहीं बताते कि ज्ञानी जान सकता है या योगी जान सकता है या जिसके पास धन है वो जान सकता है या जो बहुत ही पढ़ा लिखा है या कोई देश का जो प्रधानमंत्री वो मुझे जान सकता है, और जो छोटे मोटे लोग जो है वो नहीं। यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं? भक्त मुझे जान सकता है। और भक्त जो है वो कोई भी हो सकता है, केवल हमको क्या है? भक्ति का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना है। और विशति तद अनंतरम, जो और फिर वो मेरे जितने भी जो लोगों को लगता है कि भगवान क्या है, भगवान ये सब क्यों कर रहे हैं, कि भौतिक जगत क्यों बनाया है, भगवान कहाँ रहते हैं, उनकी लीला क्या है, ये जो बहुत ही लोगों को मिस्टीरियस ये लगता है ना, वो केवल भक्त जो है इसके विषय में और गहराई में जा जाके वो समझ सकता है और लोगों को समझा सकता है। तो भगवान यहाँ पे यही समझा रहे। और जैसे मैंने अभी हनुमान जी का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि हनुमान जी तो एक वानर का शरीर में है, लेकिन उन्होंने कभी राम जी को ऐसा नहीं बोला कि भगवान अगर आप मुझे मनुष्य बनाते तो मैं और अच्छी तरह से भक्ति करता। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। उनको जो उनके पास भगवान ने उनको जैसे बनाया उसी में वो भगवान के सबसे उच्च कोटि के राम के भक्त बने। तो इससे क्या पता चलता है कि भक्ति किसी पर निर्भर नहीं है, भक्ति इज टोटली इंडिपेंडेंट। कभी कभी हमको लगता है भगवान अगर आपने मुझे ज्यादा धन दिया होता, बड़ा घर दिया होता या ज्यादा ज्ञान, मतलब समझने का ज्ञान, बुद्धि दी होती तो मैं और अच्छी तरह से भक्ति कर पाता। कभी कभी हमको लगता है प्रभु जी क्या करूं, जॉब का इतना टेंशन है, घर संभालना है, उसमें ना प्रभु भक्ति नहीं हो पाती अच्छी तरह से। सुबह उठ के जाना पड़ता है वहां पे, इतना प्रेशर ये वो, इसकी वजह से भक्ति नहीं हो पाती। हम लोग कितने सारे क्या कहते हैं, नो डाउट जेन्युइन है हर कोई। हम भी जो
कृष्ण भावनामृत में है, हमको भी भक्ति करनी है, लेकिन नो डाउट दिस आर रियलिटी। लेकिन ये एक्चुअली हम वी कैन ओवरकम ये सारे जो हमारे जो दिमाग हमें जो ये ऑब्स्टेकल्स ला रहा है, या दिमाग हमको बोल रहा है, या मन बोल रहा है कि तुम भक्ति इसलिए नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हारा जॉब अच्छा नहीं है, या तुम उतने सोसाइटी में वेल प्लेस्ड नहीं हो, ये सब मन हम क्रिएट करता है। लेकिन यहाँ पे भगवान क्लियरली बता रहे हैं कि भक्ति बहुत ही सिंपल है, और जो ये सारे मटेरियल कंसेप्शन से जो शुद्ध हुआ है वो एक्चुअली मेरी भक्ति सही से कर सकता है। सो ये सारे जो हमारे मन के अंदर आता है, इसको हम लोग दूर कैसे कर सकते हैं? जब अपनी साधना स्ट्रांग होगी, जब अपना साधना बहुत शुद्ध होगा, या हम लोग जो ब्रह्म मुहूर्त में जो चैंटिंग करते हैं, जो डिवोटी का सही में एसोसिएशन लेते हैं। कभी कभी हमको लगता है डिवोटी एसोसिएशन मतलब सत्संग में गए, डिवोटी के बीच में बैठे और फिर बोला प्रभु जी आप कैसे हो, काम कैसा चल रहा है, फिर एक दूसरे को आलिंगन किया, प्रसाद लिया और निकले। तो हमको लगता है नो डाउट ये भी इसका भी हमको फल मिलेगा, बिकॉज वी आर इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। बट रियल डिवोटी एसोसिएशन मतलब क्या है कि जो हमको रूप गोस्वामी बताते हैं ना, ददाति प्रतिगृणाति भूयम आख्याति प्रत्यति भुंक्ते भोजते चैवे षड्विधि प्रीति लक्ष्मी। तो एक्चुअल डिवोटी एसोसिएशन, जब हम डिवोटी को मिलते हैं, हमसे जो उच्च कोटि के जो सीनियर मिलते हैं, तो वी हैव टू स्पेंड मोर टाइम कि मतलब बताने के लिए प्रभु जब मैं चैंटिंग करता हूँ तो मुझमें कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, मुझमें रीडिंग में इंटरेस्ट उतना नहीं आ रहा है, लेक्चर में मुझे नींद आती, ये सब जो हमारे अंदर जो हमको आगे बढ़ने में रुकावट है, ये सब डिस्कस करना है कि प्रभु आप कुछ समझाइए, हाउ आई कैन डू इट। सो दिस इज एक्चुअल डिवोटी एसोसिएशन। तो हम ये जब सही से करेंगे एंड जब वो हमको मार्गदर्शन देंगे, तभी क्या होगा, तभी वी विल एक्चुअली जो भक्ति मार्ग पे हम आगे बढ़ेंगे। और तभी अपना जो सारे सेंसेस आउट ऑफ जो कंट्रोल रहते हैं, जो नियंत्रित नहीं रहते, उसको जब हम भक्तों के संग में उनसे क्या कहते हैं, उनका गाइडेंस ले लेके उसको फॉलो, एक तो होता है गाइडेंस लेना, और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको अप्लाई करना। आप भले ही 2 ही प्रश्न पूछ के 2 ही उत्तर लो, लेकिन वो जो उत्तर दिया है आपको एक वरिष्ठ भक्त ने, उसको अप्लाई कीजिए। भले ही वो स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा, बट ट्राई टू अप्लाई सिंसियरली। और जब आप सिंसियरली उसको अप्लाई करने का कोशिश करेंगे, कृष्णा विल ऑल्सो हेल्प यू, क्योंकि ये सही में इसको आगे बढ़ने का इच्छा है, ये ऐसे टाइम पास नहीं कर रहे, ये सही में प्रश्न पूछ रहा है, और जो उसको उत्तर उसके जो वरिष्ठ जो सीनियर डिवोटीज को गाइड करे, उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कृष्णा विल ऑल्सो हेल्प अस, एंड व्हेन ये होगा, तब धीरे धीरे हमारे अंदर वो चेंजेस आएंगे। नहीं तो क्या होगा, डिवोशनल लाइफ भी एक तरह का एक रिक्रिएशन हो जाएगा, एक हॉबी हो जाएगा। हम लोग संडे को जाएंगे सत्संग में, नाचेंगे कूदेंगे, प्रसाद लेंगे, और सबको लगेगा कितना अच्छा डिवोटी हर संडे आता है। नो डाउट इसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन क्या है ना, हमको अभी यही लाइफ टाइम में थोड़ा अपना परिपक्व होना है। दैट इज ये सब अगर किया तो इसमें हानि नहीं है। संडे को कहीं पिक्चर या मॉल जाने से अच्छा ये अच्छी बात है, लेकिन अगर हम सीरियसली करेंगे ना, तो इसमें हमारा फायदा है। जैसे कि आप जॉब में जाओगे, आपको सैलरी तो आते रहेगी, लेकिन आप अगर सही से अच्छी तरह से इन्वॉल्व होकर जॉब करेंगे, तो आपका प्रमोशन भी होगा, आपका तनख्वाह भी बढ़ेगी, आपका नाम भी होगा, है कि नहीं? तो उसी तरह से भक्ति में सत्संग में आना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम गंभीरता से करेंगे तो अपना जो एडवांसमेंट है वो जल्दी होगा। और जितना हम एडवांस होंगे ना, उतना हमको क्या होगा, अपना जो ये मटेरियल लाइफ का जो मिजरीज है, उससे हम बहुत बहुत दूर जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, कॉन्शियसनेस, एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस, कि हर कोई जीव जो है उसमें कॉन्शियसनेस है, लेकिन जो भक्त है उसका कॉन्शियसनेस, क्योंकि वो एडवांस है, क्योंकि ही इज सीइंग इट फ्रॉम अ वेरी टॉप, मतलब उसका हाई लेवल कॉन्शियसनेस, इसलिए वो छोटे छोटे ये जो लाइफ में जो मिजरीज है उसको, बिकॉज उसका कॉन्शियसनेस अभी एडवांस हुआ है, एंड सीइंग इट थ्रू शास्त्रास, वो उसको सह पाता है, उसको समझ पाता है, एंड वो विचलित नहीं होता। दैट इज द डिफरेंस। नहीं तो हर किसी को कॉन्शियसनेस है। तो यहाँ पे ये एक बात है। और आगे प्रभुपाद बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं विश्वामित्र मुनि के। तो विश्वामित्र मुनि का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो भी एक बहुत ही बड़े महान क्या कहते हैं ऋषि है, लेकिन वो किस में पारंगत है? वो अष्टांग योगा में पारंगत है। तो लेकिन क्या हुआ उनका अष्टांग योगा में? उसमें क्या होता है, पूरा तरह से आपका जो प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन हाउ यू कंट्रोल योर सेंसेस।
आप अपने इंद्रियों को किस तरह से वश में रखते हो, उसके ऊपर आपकी क्या है आपका जो प्रोसेस है उसका सक्सेस उस पर डिपेंड होता है। और अपना भक्ति योगा का प्रोसेस क्या है? अब अपना भक्ति योगा का प्रोसेस डिपेंड्स ऑन हाउ वी एंगेज द सेंसेस। मतलब उसको खाली नहीं रखना है, उसको भगवान की सेवा में एंगेज करना है। और अष्टांग योगा में क्या है, आप पूरी तरह से उसको दबा के, मतलब आप मन को बोलते हैं कि मन से आप बोलते हैं कान को कुछ नहीं सुनना है, नाक को बोल रहे कुछ भी आपको सुगंध नहीं लेनी है, आप अपने आंख को बोलते बिल्कुल आपको बस बंद करके ध्यान करना है। तो आप कंट्रोल कर रहे हैं फोर्स से, मतलब इट इज नॉट कमिंग नेचुरली। तो विश्वामित्र मुनि इतने पारंगत थे योगा में, फिर भी जब वो मेंका का उन्होंने वो जो घुंघरू जो उनका पायल का वो जो आवाज सुना, इमीडिएटली विद इन नो सेकेंड वो पूरा जो उन्होंने इतना मेहनत करके उन्होंने वो जो प्रयास किया था वो पूरा एक ही क्षण में विफल हो गया। तो इसलिए शिला प्रभुपाद इसका उदाहरण दे रहे हैं कि और फिर जैसे हम जानते हैं सौबर मुनि, वो पानी के नीचे, मतलब पानी के नीचे वो कितने तो साल उन्होंने तपस्या की। तो सोचिए हमको पानी के नीचे 1-2 सेकंड नाक बंद करके रहना भी, मतलब अगर सांस नहीं ले सकते और हम अचानक बाहर आ सकते हैं, और ये इतने पारंगत, वो पानी के नीचे बैठ के उन्होंने कितने तो हजारों साल तपस्या की। और वो तपस्या करते वक्त उन्होंने क्या देखा, उन्होंने खाली देखा कि 2 मछली, एक जो पुरुष, एक फीमेल और एक मेल, ये 2 मछलियों को उन्होंने क्या कहते मैथुन करते देखा। तो समझिए एक मछली की अगर हम एक मार्केट में गए और हमको किसी ने बोला ये मेल मछली है और ये फीमेल मछली है, हमको फर्क भी पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। और ऐसे जो मतलब मेल कौन है फीमेल कौन है हमको पता नहीं, और इन लोगों को मैथुन करते देखा तो हमको कुछ इफेक्ट होगा क्या? नहीं, क्योंकि हम लोग जो है वी नो कि एक स्त्री कैसी दिखती है, ह्यूमन बीइंग, मतलब एक स्त्री, एक पुरुष और एक स्त्री कैसे दिखते हैं हमको पता है। और जब एक अगर कुछ कर रहे हैं, अगर हमने देखा तो थोड़ा बहुत हमारी इंद्रियां उत्तेजित होगी, लेकिन मछली को देख के हमको, क्योंकि हमको समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन ऐसे ऋषि ने जब मछलियों को पानी के अंदर मैथुन करते देखा कि इमीडिएटली उनका पूरा जो योग का जो उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी उससे वो विचलित हुए, वहां से वो उठ गए और एक राजा से जाके उन्होंने उनके जितनी भी पुत्रियां थी उनसे शादी की और उनसे बच्चे उत्पन्न किए। तो सोचिए मतलब ये सारा जो प्रोसेस है, नो डाउट दिस आर ऑल, लेकिन ये वो लोग भी नहीं कर पाए और कलयुग में हम तो बिल्कुल हमारे लिए इट इज इम्पॉसिबल। तो प्रभुपाद इस तात्पर्य में यही जोर दे रहे हैं कि ये जो भक्ति का प्रोसेस है ना, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो प्रभुपाद ने दिया है, जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है। लेकिन कभी कभी बोलते हैं ना, कुछ चीजें इतनी सिंपल होती है को मिस हो जाता है कभी कभी मतलब हमको लगता है कुछ तो ऐसा जबरदस्त होना चाहिए जो सिंपल थिंग्स वी फील ना, एक तो कोई भी कर सकता है, लेकिन नहीं, ये सिंपल होते हुए भी हमको अपने जीवन में उच्च लेवल पे अपना जो चेतना है उसको उच्च कोटि पे लेके जा सकते हैं। और एक्चुअली यहाँ पे डिंट ऑफ रिजिड डिवोशनल सर्विस प्रभुपाद लिख रहे, रिजिड डिवोशनल सर्विस मतलब रिजिड क्यों है? तो ये हमको यही कार्य बार बार यही कार्य करना है। हमको सुबह उठ के डेली 16 माला करना है, डेली उठ के हमको भागवतम पाठ करना है, डेली हमको भक्तों का संग करना है, डेली हमको प्रसाद लेना है, डेली यही कार्य करना है। ऐसा नहीं कि ये 5 साल ये करना है फिर 6th ईयर से हमको कुछ और नहीं, यही जो सिंपल चीजें है, ओके, यही हमको करते रहना है ना, रिजिड वे, मतलब उसको करते करते उसमें हमको एक्सपर्ट बनना है। तो इसलिए रिजिड डिवोशनल सर्विस एंड, और इससे क्या होगा, अपने जो इंद्रियां है वो नियंत्रित होती जाएंगे। और इसलिए हमको अपनी इंद्रियों को कभी भी खुला नहीं छोड़ना है, नेवर। ऐसा नहीं कि सुबह आपने ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग किया, भागवतम का क्लास अटेंड किया, सब किया, तो अभी 10 बज गए, तो ऐसा नहीं सोचना है कि आज मैंने अपना पूरा कैलेंडर जो शेड्यूल है, शेड्यूल के हिसाब से सही सब कुछ किया है, नाउ आई एम फ्री, मतलब अभी मैं कुछ अगर करूंगा तो मैं भक्ति मतलब माया मुझे पकड़ नहीं सकती, ऐसा नहीं है। सो वी शुड नेवर थिंक, क्योंकि माया देवी जो है, हम लोग जो कर रहे हैं हमको लगता है क्योंकि अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से हमको लगता है हमने बहुत कुछ किया है, बट एक्चुअल भक्ति का जो स्टैंडर्ड है दे आर सेट बाय हरिदास ठाकुर।
जैसे अभी यहाँ पे विश्वामित्र मुनि और सौरभ मुनि की बात हो रही है, और वहीं पे उदाहरण में हरिदास ठाकुर जी, जिनके सामने मतलब जैसे कहते हैं कि प्रत्यक्ष माया देवी जो सबसे सुंदर, आप सोच सकते हैं मतलब माया देवी का अगर वो एक्सपेंशन है, वो स्वयं माया देवी है तो कितनी सुंदर। लेकिन हरिदास ठाकुर बिल्कुल विचलित भी नहीं, उनके मन में कभी एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं आया कि क्या कहते हैं, इतना मैंने पूरा जीवन भक्ति की हुई है तो थोड़ा बहुत मैं इंद्र तृप्ति कर लूं क्या। मतलब वो एक क्षण के लिए उनको वो हम लोगों के लिए क्या होता है, हम लोगों के लिए ऐसे सब थॉट्स आते हैं, देन वी टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा गुरु, देन वी टेक शेल्टर ऑफ शास्त्र में क्या लिखा है, ये सब होने के बाद देन वी से नहीं नहीं ये सब गलत है। मतलब हमारा स्टैंडर्ड ये है कि वो आते हैं थॉट्स, अगर हमको इंद्र तृप्ति का अगर मौका मिला तो फर्स्ट वी क्या कहते हैं उसके ऊपर कंटेम्पलेट करते हैं कि करके देखूं क्या, थोड़ा जाऊं क्या पिक्चर के लिए, पार्टी में जाऊं क्या, ऐसा सोचते हैं। फिर अचानक गुरु कृपा से, जैसे यहाँ पे आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान जो हृदय में है वो हमको अंदर से बोलते हैं नहीं नहीं इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हो, क्यों क्या बोलते हैं किया कराए पे पानी फेर रहे हो। और फिर हम लोग बाय द मर्सी ऑफ गुरु कृष्णा वरिष्ठ भक्तों का हमको अंदर से लगता है नहीं 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 ये सब गलत है। फिर शास्त्र में हम देखते हैं, फिर देखते हैं इसके साथ ऐसे हुआ उसके साथ ऐसे हुआ तो हम लोगों को नहीं, एंड देन वी से नो। लेकिन हरिदास ठाकुर के मन में एक क्षण के लिए भी उनको वो ख्याल भी नहीं आया कि माया देश स्वयं आई है और इतना अच्छा मौका है नहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको भक्ति में लगा दिया। तो यहाँ पे वही इस पूरे इसका यही संक्षेप में अगर हम देखेंगे तो हमको अपना जो प्रोसेस है उसको एकदम सिंसियरली और रिजिडली फॉलो करना है। इतना फॉलो करना है कि वी गेट क्लेंस्ड ऑफ मटेरियल कॉन्शियसनेस। ये जो भौतिक चेतना से ना हमको पूरी तरह से शुद्ध होना है, क्योंकि जब भौतिक चेतना से हम लोग पूरी तरह से शुद्ध होंगे तभी हमारे हृदय में और हमारे पूरे जीवन शैली में केवल कृष्ण भावना मृत्यु रहेगा। और हमको भी अभी जैसे हनुमान जयंती आने वाली है, हमको भी हनुमान जी की तरह होना है। हनुमान जी हमको दर्शाते हैं कि भक्ति कोई भी कर सकता है, केवल आपको मनुष्य का देह नहीं, मतलब आप हमारा तो ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि हमको मनुष्य का देह मिला है। तो अगर हनुमान जी अपने से दर्शा रहे हैं कि भक्ति बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिससे भगवान आकर्षित होते हैं, एंड उससे ही हम भगवान का जो है भगवान को जीत सकते हैं। और इट हैज नथिंग टू डू आपका भौतिक क्वालिफिकेशन या आपका भौतिक क्या कहते हैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। और वही अंत में भगवान शिला प्रभुपाद वही लिख रहे हैं कि therefore controlling senses by devotional is only easiest mean। तो अगर हम सबको अपने इंद्रियों पे नियंत्रण करना है और भक्ति में आगे बढ़ना है तो ये जो कृष्ण भावनामृत का जो भक्ति का प्रोसेस है, चैंटिंग, डांसिंग, ईटिंग प्रसाद, एसोसिएशन ABCD, बहुत ही उत्तम और बहुत ही सरल उपाय है जिससे हम जो हमारे मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं यहाँ रुकता हूँ। हरे कृष्णा। आप भी प्लीज इसमें से परपट में से कुछ प्लीज शेयर कीजिए। और हाँ, इसमें एक प्रभुपाद वही लिखते हैं कि अपना वी शुड रीच अ लेवल की वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सु, मतलब उस लेवल में पहुंचने का हमको प्रयास करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण सर्वोत्तम है। सर्व में मतलब मेरे पूरा जीवन का ध्येय केवल वासुदेव, ओके, सर्वमिति सहमात्मा। तो हमको उस लेवल पे पहुंचने का ये भी प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिख रहे हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मैं रुकता हूँ। हरे कृष्णा सूरज बाबू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। वेरी नाइसली एक्सप्लेन। मतलब इतना छोटा परपट है लेकिन मतलब प्रभुपाद ने इतना कुछ उसमें पॉइंट्स दिया हुआ एंड वेरी नाइसली यू एलेबोरेटेड उसमें से ऑल दिस पॉइंट्स कि डिवोटी का एसोसिएशन क्या है,
नॉट जस्ट टाइम पास नहीं करना है हम लोगों को, बस हरे कृष्णा किया, आलिंगन किया, प्रसाद खाया, डांस किया, निकल गए। वी थिंक उस समय हमको ऐसा लगेगा कि हम लोग भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, बट दैट इज नॉट द रियल थिंग। वो थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं, क्षणिक हम लोगों को एक आनंद आता है, बट उसको बनाए रखने के लिए हम लोगों को जो है, जैसे रूपू गोस्वामी जी बोलते हैं नेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, ददाति प्रतिगणनाति, तो दैट यू एक्सप्लेन वेरी नाइसली। फिर हनुमान जी का जो पॉइंट था कि कैसे हनुमान जी मतलब वानर होते हुए भी उन्होंने कभी भगवान से ये नहीं बोला कि मुझे वानर क्यों बनाए। तो वो पॉइंट कि हम लोग जैसे भी हैं, हम लोग को भगवान का भक्ति अच्छे से करना है, वट एवर पोजिशन, वट एवर सिचुएशन वी आर, सिचुएशन का एक्सक्यूज नहीं ले सकते हम लोग। तो दैट इज वन नाइस पॉइंट। और फिर अष्टांग योग में कैसे लोग जबरदस्ती उसको कंट्रोल कर रहे हैं और डिवोशनल सर्विस में कैसे इजीली कंट्रोल होता है। सो दिस ऑल दिस पॉइंट्स आर वेरी वेरी नाइसली एक्सप्लेन। और जैसे हरिदास ठाकुर का भी जो एग्जांपल था कैसे भक्ति इजी है। तो या थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। यस समीर प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत बहुत बढ़िया क्लास था प्रभु जी। आपने वो जो ज्ञान और भक्ति का जो कंपैरिजन और जो बताया ना, वो बहुत अच्छा लगा था। मतलब जस्ट एक पॉइंट उस पर ऐड कर रहा था कि हम लोग की जो बुद्धि है वो सिर्फ एक फीस्ट की साइज की है, और ब्रह्मदेव जो है वो तो पूरे के पूरे ही इज मतलब मेनी मल्टीपल टाइम्स, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स बिगर देन अस, और वो पूरे के पूरे बुद्धि से बने हुए। स्टिल ही कुड नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा। उनको 500 साल तपस्या करनी पड़ी, उसके बाद उनको भगवान प्रसन्न हो गए, उसके बाद फिर वो आगे कर सके। मतलब इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो सिर्फ ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला है। वी नीड भक्ति अलोंग विथ, मतलब भक्ति इंपॉर्टेंट है। भक्ति करेंगे तो ज्ञान अपने आप आ जाएगा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। यस प्रभु। कभी कभी खाली ज्ञान विदाउट भक्ति हम लोगों को पफ्ड अप बना देता है। हमको लगता है कि अभी मैं पंडित हो चुका हूँ, तो भक्ति साइड में रह जाती है प्रभु। राइट, व्हाट यू सेड इज वेरी राइट। हरे कृष्णा। धन्यवाद। यस सत्यराज प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत अच्छा क्लास अपने और प्रैक्टिकल क्लास। जैसे एसबीएस गोपी प्रभु ने बताया वो जो पॉइंट, वो भी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा इम्प्लीमेंट करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है प्रभु जी। प्रभु जी, एक ही चीज आपने एक सेंटेंस में बोला आपने प्रभु जी कि सेंसेस को कंट्रोल तो हम लोग को फोर्स करना ही पड़ेगा, राइट, स्टार्टिंग में। बिकॉज यू सेड लाइक जब तक हम लोग फोर्स नहीं करेंगे, रिस्ट्रेन नहीं करेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हम लोग खाते हैं बाहर, एग्जाम्पल अच्छा लगा मेरे को, पिज्जा अच्छा लगता है, तो मैं पिज्जा, मैं कंट्रोल सेंस को कंट्रोल कर रहा हूँ, देन ओनली आई कैन कंट्रोल, राइट। तो आपने बोला कि कंट्रोल नहीं करना है, ऐसा कुछ बोला, राइट प्रभु जी आपने, या रिस्ट्रेन बोला आपने प्रभु जी सेंसेस को, या फोर्स नहीं करना है? हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद। एक्चुअली प्रभुपाद मतलब लाइक सब लोग हमको यही समझाते हैं कि सेंसेस को आप फोर्सफुली कंट्रोल करेंगे तो कुछ देर के लिए मतलब आप वो कंट्रोल कर सकते। जब अचानक वो मतलब वो डैम जब बांध जब टूटता है तो पानी और मतलब पूरा बाढ़ लाता है ना, उसी तरह से तो अगर हम फोर्सफुली उसको कंट्रोल करेंगे तो टू अ सर्टेन एक्सटेंट हम कर पाएंगे, बट उसका गारंटी नहीं। इट विल वन डे आपको क्या करेगा, वो आपसे ज्यादा हानि पहुंचाएगा, जैसे विश्वामित्र मुनि वगैरह। लेकिन वही अगर हम उसको एंगेज करेंगे, मतलब सेंसेस को अगर हम एंगेज करेंगे, जैसे एक लड़का जो बच्चा है, अगर आप उसको एंगेज रखोगे, उसको खेलते हुए वगैरह तो वो कभी भी किचन में एंटर नहीं करेगा। नहीं तो उसको लगता है किचन में भी जो सामान है जैसे चाकू ये वो, उसको लगता है इससे भी मैं खेल सकता हूँ। तो आप उसको फोर्सफुली 1 या 2 बार बोल सकते हैं किचन में नहीं आओ, किचन में नहीं आओ। लेकिन उसी बच्चे को अगर आपने एक अच्छा कहानी का बुक दिया, उसको खेलने के लिए जो कुछ वो आजकल क्यूबिकल आते हैं वो दिया, पेंटिंग दिया, तो वो किचन की तरफ देखेगा भी नहीं, क्योंकि इज ऑलरेडी बिजी नाउ और उसको उसमें आनंद भी आ रहा है।
तो कहने का यही है कि आप फोर्सफुली सेंसेस को कुछ देर के लिए कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अगर आपको उससे एंगेजमेंट और नहीं मिलेगा तो सेंसेस एक दिन पूरा उससे ज्यादा हानिकारक ये करेगा उसी इंद्रिय तृप्ति में। बट वही सेंसेस अगर आप पूरा 24 घंटा एंगेज हो, माला कर रहे हो, भक्तों के संग में हो, अध्ययन कर रहे हो शास्त्र, तो आपके पास अभी टाइम नहीं है और कुछ सोचने के लिए। तो उस तरह से प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु। गोपी मनोहर प्रभु या उद्धव प्रेष प्रभु भी है, समीर प्रभु, आप हरे प्लीज कृष्णा। ऐड। हरे हरे कृष्णा। या जस्ट वांटेड टू ऐड, जैसे प्रभु का जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए एक्चुअली अलग अलग लेवल है इसके लिए। एक तो बिगिनर्स लेवल है, जैसे जो कर्मी लोग हैं उनको दे आर मतलब इतना मतलब इंद्र तृप्ति में वो लोग पारंगत है कि उन लोग को करना ही है। सो फॉर देम, जैसे प्रभु ने छोटे बच्चे का एग्जांपल दिया, तो उसको मतलब जो मस्ती कर रहा है, वो घड़ी घड़ी चाकू पकड़ रहा है, तो उसको थोड़ा फोर्स करना पड़ेगा अपने को। लेकिन वो फोर्स करते 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 जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो ही अंडरस्टैंड्स। तो हम लोग भी वैसे जब भक्ति कर रहे हैं तो इनिशियली हम लोगों ने बहुत किया, हम लोग नॉनवेज खाते थे, शराब पीते थे, सब काम करते थे, लेकिन वहाँ पे उस पॉइंट पे हम लोगों ने उसको सेंसेस को कंट्रोल किया। लेकिन जब जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं तो वी हैव टू कंट्रोल आवर सेंसेस थ्रू भक्ति योगा एंड नॉट बाय अष्टांग योगा। जैसे प्रभु जी ने या प्रभुपाद जी ने भी बहुत अच्छा उदाहरण दिया है विश्वामित्र मुनि जी का और हरिदास ठाकुर जी का। तो मतलब विश्वामित्र मुनि जी ने 60,000 वर्ष तपस्या किया था, लेकिन फिर भी उनका पतन हो गया। और हरिदास ठाकुर जी वॉज जस्ट मतलब कुछ भी नहीं करते थे, ना कोई तपस्या करते, ना कोई उनके पास शक्ति था, उनके पास खाली हरि नाम किया करते थे। तो उस हरि नाम के बल पे उन्होंने वो जो इतनी सुंदर जो स्त्री आई थी, मतलब बोलते हैं कि मतलब एकदम ब्रह्मांड में सबसे सुंदर थी, बट उसको भी मतलब वो उनको आकर्षित नहीं कर पाई। वो क्यों? क्योंकि उनका जो सेंसेस था वो भक्ति में लगा हुआ था। तो दैट इज द डिफरेंस। तो मतलब अलग लेवल है, एक तो इनिशियल लेवल है और एक क्या बोलते हैं ना एमेच्योर जो है ना, हाई लेवल जो है, एडवांस लेवल है। तो वो दोनों लेवल का अलग अलग अपना पोजीशन है, और वो हिसाब से प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में बता रहे हैं। आई होप आई एड्रेस्ड योर क्वेश्चन सत्यराज। हरे कृष्णा। यस यस प्रभु जी, यस। देखिए प्रभु जी, मैं दिखता हूँ ऐसे। अभी प्रभु जी ने बच्चों का एग्जाम्पल दिया, लेकिन हम लोग जब भी फॉर एग्जाम्पल एक डिओटी का हम लोग लेंगे, ही इज इन टेम्पल, ही इज सर्विंग एवरीथिंग, सॉरी फॉर एनी ऑफेंस, लेकिन फिर भी उनका कभी मतलब फॉल डाउन होता है। तो मतलब वो मैं समझ नहीं पा रहा था कि लाइक ही कंट्रोल एवरीथिंग, आई मीन he is in temple, he is doing everything, but still he fall down. तो लाइक तो वो एंगल से मैं सोच रहा था प्रभु जी कि बच्चा है वो तो खेलेगा, उसको हम लोग कुछ एंगेज करेंगे, लेकिन अगर कोई भक्त है वो आई मीन ही इज 24 आवर्स ही इज एंगेज इन सेवा, एंड देन कुछ ऐसा कुछ चीज होता है एंड देन ही कंप्लीटली बाहर ही आ जाते। तो तभी मैं सोच रहा था कि हम लोग पहला तो फोर्स करना चाहिए, जैसे आपने प्रभु जी आपने बताया, एंड देन धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करना चाहिए कि एंगेज हर एक चीज भगवान की सेवा में। तो थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू सत्यराज। आई थिंक तुम्हारा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत पॉइंट्स निकल रहे हैं। उद्धव प्रेष प्रभु जी भी बोलना चाह रहे हैं कुछ, और कुंजेश्वरी भी। तो फर्स्ट उद्धव प्रेष प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। ऑफ कोर्स इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसके दो पर्सपेक्टिव हैं जो मैंने लेक्चर्स के अंदर सुना है और कुछ जो मटेरियल मैंने पढ़ा है। तो अगर पहली बात लेक्चर में सुना था वो सर्वभौम प्रभु का एक बहुत सुंदर लेक्चर था, जिसके अंदर बोलते हैं कि भाई ये जो हमको उत्तेजित करता है और हमको उस तरफ ले जाता है, हमारे जितनी भी इंद्रियों को उस तरफ खींच के ले जाता है, वो है हमारा मन। तो वो मन को जो है मतलब फिर ये सर्वभौम प्रभु अपने लेक्चर के अंदर बता रहे थे कि भाई मानो कि हम रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते से गए हैं और हमको बहुत अच्छी खुशबू आई
गरम गरम जलेबियों की मतलब खुशबू आ रही है। तो जैसे ही हम वहां से रास्ते से गुजर रहे हैं और उससे जलेबी की खुशबू आई, तो हम लोगों ने क्या कहा, ठीक है नाक को आ गई खुशबू, तो हमने देखा तो वह पास में बड़ा अच्छा हलवाई का दुकान है और साफ सुथरा है। वो ठीक है, वहां से जाके जलेबियां ले लेते हैं और जलेबियां खाऊंगा मैं। मगर वो कहते कि अगर मन मतलब इंद्रियों ने तो उसको इंस्ट्रक्शंस दिया मन को, और मन उत्तेजित हो गया, मन उस तरफ भागेगा। मगर बाकी की जो इंद्रियां हैं, जो हमारे शरीर के बाकी के जो हिस्से हैं, उनको उधर जाने देना ही नहीं चाहिए। मैंने कहने का मतलब है, मन को बोलता ठीक है तेरे को जाना है ना, तो तू जा। मैं अपनी बाकी की जो इंद्रियां हैं, या पैर है, हाथ है, इनको उधर लेके नहीं आना, मेरे अंग को वहां नहीं ले जाना है। तो ऐसे करके हम एक कंट्रोल कर सकते हैं। तो कभी किसी को हम अरे मन में होगा, अरे इसका किसका पोस्टर देख लिया, बहुत अच्छी पिक्चर है, तो बोले ठीक है तेरे को जाना है ना, मन को बोलता तू जा, मैं अपने शरीर को वहां पर नहीं ले जाऊंगा। तो एक तरह से ये कंट्रोल होगा। दैट इज द इमेच्योर स्टेज, एंड दिस इज हाउ वो भी बात जैसे बोलते हैं, अभ्यास करेंगे बार बार इस चीज का, तो उसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा जो प्रभु ने भी बताया कि भाई ऐसे डिवोटीज भी होते हैं जिनका मतलब पतन होता है। तो ऐसे होती हैं सिचुएशंस, ऑफ कोर्स ऐसे होती हैं। तो इन दैट केस उसका एक मतलब एग्जांपल मैंने पढ़ा था, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है कि व्हाट आर द नेम्स एंड व्हाट वाज इट। तो ये बता रहे ईस्टर्न ब्लॉक के अंदर एक डिवोटी था, वो मतलब काफी समय से जो है टेंपल से जुड़ा हुआ था। मगर ऑल ऑफ अ सडन उसको कुछ दूसरे डिवोटीज के साथ में कुछ फ्रिक्शन हो गया, एंड 2-3 कंटिन्यूअस ऐसे इश्यूज हो गए। तो उसने कहा कि ठीक है मुझे नहीं करना, आई वांट टू जस्ट लीव, एंड ही मूव्ड आउट ऑफ द टेंपल। तो टेंपल से बाहर निकल के मतलब उसे फाइन डिसाइड कर लिया था मैं जा रहा हूँ करके। तो वो बोला मैं ऐसे अपने होम टाउन में जाऊंगा, मतलब जहाँ पर मतलब आई विल गो बैक एंड गेट इनटू जैसे गृहस्थ का लाइफ होता है, ऐसे मैं जाके अपना टाइम व्यतीत करूंगा। तो वो जब जा रहा था, नाउ सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ही हैड मेड हिज डिसीजन, ही लेफ्ट एवरीथिंग, वो सब छोड़ छाड़ के अपने वापस नॉर्मल जो ब्रह्मचारी के कपड़े वपड़े सब छोड़ के नॉर्मल क्लोथ के अंदर आके ही देन स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स हिज प्लेस। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग व्हाट हैपेंड, जब वो प्लेन के अंदर जा रहा था अपने उधर वहां पर अपने घर की तरफ, तो इसको मतलब बहुत भयंकर भूख लगी थी। अभी इसका नेचर क्या था कि हमेशा प्रसाद खाना, बाहर का कुछ खाना नहीं। हालांकि अभी इसे छोड़ दिया है, he has decided that he wants to move out। तो वो प्लेन के अंदर बैठ के जा रहा है, तो उसने डिसाइड कर लिया कि भाई मतलब अभी आई वांट टू लीव एंड आई वांट टू गो। तो वो जब जा रहा है प्लेन के अंदर, उसको बहुत भयंकर भूख लगी है, इसको कुछ खाना है। मगर उसका मन क्या बोलता है कि नहीं, मतलब उसका नेचर ऐसा हो गया है कि उसको बाहर का कुछ ऐसे अनाप शनाप नहीं खाना है। मगर फिर वो अपने आप को बोला ठीक है, मैं थोड़ा टाइम के बाद मैं उतर के कहीं ना कहीं से होटल से खाना खा लूंगा। अभी जब वो अपने ऐसे पहले से जो उसको प्रयास किया था कि उसे बाहर का खाना नहीं खाना है, सिर्फ प्रसादम ही खाना है, तो वो जब उतरता उसको भूख लगी हुई है। तो व्हेन ही इज गोइंग आउट, मतलब ये इसका मन कहता है कि मुझे बाहर का खाना खाना है। तो उस समय पे जो आसपास में जो दूसरे लोग थे, दे वेर नॉर्मल जो लोग होते हैं, वो अपने गृहस्थ लोग थे। उसमें से कोई आके बोला ये आप मतलब एक कुछ खाओगे? तो जब भी उन्होंने मतलब बोला ठीक है अभी मुझे खाना ही है, तो मैं खाना खाता हूँ। तो उन लोगों से उसने वो चीज ली और खाना शुरू किया। जब वो उसने लिया, मतलब जो खाने की वस्तु उनसे ली, तो जो जिसने लिया उसको, उसने बोला हरे कृष्णा, और हरे कृष्णा करके चला गया। और वो जो था, ही वाज नॉट इन सैफरन क्लॉथ, और ही वाज नॉट अ ब्रह्मचारी जिसने उसको प्रसादम दिया। तो देन ही रियलाइज्ड कि देखियो मुझे तो, और मैं एक ईस्टर्न ब्लॉक कंट्री के अंदर हूँ, जहाँ पर आसपास में जितने भी मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर गृहस्थ एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर नॉट डिवोटीज। हाउ कम दिस पर्सन हैज कम टू मी एंड आई एम सो हंग्री एंड ही हैज गिवन मी द फूड एंड I don't know him, he doesn't know me, and when I'm going out, when he's moving out, he's saying Hare Krishna. That means Krishna has the arrangement that मैं वापस भगवान के पास जाऊं। Then he gets down from the airport. तो एयरपोर्ट पे उतरते फिर बाहर जाता है, तो बाहर भी किस जगह पे जाके बैठता है, तो वहां पर भी इसको डिवोटीज का मतलब, बट दे वर नॉट इन काइंड ऑफ इन दे वर इन नॉर्मल क्लोथ, जैसे गृहस्थ होते हैं, जैसे आम पब्लिक होती है उसी के अंदर। तो ही एनकाउंटर्स अगेन अ सेकंड सच काइंड ऑफ रियलाइजेशन कि उसको जो मिलते हैं वो वहां पर उसको जो डिवोटीज मिलते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर ऐसा वो मन में आ भी जाता है और उसका फॉल डाउन होता है, तो वहां पर भी कृष्णा उसको बचाते हैं। कृष्णा विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ
such kind of devotees who had already taken the step ahead कि भाई मुझे भक्ति में आगे बढ़ना. Then he realized कि भाई जो मैं करने जा रहा था वो सही नहीं था. So he came back and he joined the ashram and then he apologized to everybody कि भाई मेरे से ये गलती हो गई, मैंने ये डिसीजन लिया था, डिसीजन which was wrong and I'm extremely sorry and I need to correct myself. So these things they do happen. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रभु जी. थैंक यू सो मच प्रभु जी. थैंक यू, थैंक यू. ये समीर प्रभु. हरे कृष्णा. उद्धव पृष्ठ प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था. काफी उस पे से मतलब कृष्णा अपने कंटिन्यूस अपने साथ रहते हैं, हाउ ही हेल्प्स अस व्हाइल वी आर एक्चुअली फॉलिंग डाउन. प्रभु जी, एक जस्ट उसके ऊपर एक क्वेश्चन आपने जो बोला था कि हम लोग मन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग बाकी के इंद्रियों को कंट्रोल करके बोलेंगे कि तुम उसको हेल्प नहीं करेंगे, तो वो एक काइंड ऑफ रिस्ट्रेन हो गया ना प्रभु जी. तो रिस्ट्रेन करेंगे तो वही मतलब विश्वामित्र जैसा होगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लॉट ऑफ रिस्ट्रेनमेंट विल मतलब ब्रेक दी काइंड ऑफ बलून एंड मतलब और फिर वो मतलब फिर आदमी एकदम ये मतलब इंद्रियों से एकदम पूरे के पूरे छूट जाएंगे. तो वही जैसा हो गया ना प्रभु जी. अगर हम लोग इस तरह से करेंगे कि एक लिमिट में, जैसे मतलब अभी शास्त्र सम्मत है कि अगर जिलेबी खाने की इच्छा है तो जिलेबी को घर पे लेके जाओ, प्रसाद बना के उसको फिर खाओ. तो इन दैट सेंस अगर शास्त्र सम्मत आधार से हम लोग ने इंद्रियों को मतलब जो चाहिए वो एक लिमिट पे अगर देते रहेंगे तो विल दैट हेल्प. मतलब फिर और भक्ति हम लोग करते रहेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भक्ति से हम लोग को फिर स्पेसिफिक एफर्ट नहीं लेना पड़ेगा इंद्रिय निग्रह का. तो ये हो सकता है क्या प्रभु जी? हरे कृष्णा. प्रभु सिंस टाइम छोटा कम है इसके लिए मैंने इसको कट कर दिया था मैटर को. अगर आपने जो पॉइंट रेज किया परफेक्टली करेक्ट है. तो यहाँ पर जो सर्वभौम प्रभु बताते हैं कि अगर आपको जलेबी खाने का मन होता है और आप अपने इंद्रियों को बाकी के शरीर को उधर जाने नहीं देते हैं, तो उसको उसके बाद में आपको क्या करना है? तो आपको उसके मन को बोलना है कि ठीक है, अगर तुझे जलेबी खानी है ना तो गो होम, प्रिपेयर जलेबी योरसेल्फ, ऑफर टू द लॉर्ड एंड देन यू हैव इट. तो इसमें क्या होता है, जब ये प्रोसेस ऐसा हो जाता है ना तो आपके अंदर संयम आता है और वो संयम ही है जो आपको इट्स अ रियल कंट्रोल ऑन योर सेंसेस. और सही मतलब कैसे, ठीक है मुझे जलेबी खानी है ना, मगर मैं खुद पहले क्यों खाऊं, ठाकुर जी को पहले ऑफर करूंगा. तो वो क्या करोगे आप खुद जाके, अगर जलेबी बनाना नहीं आता तो आप जलेबी बनाना सीखोगे, अगर जलेबी बनाना आता है तो आप जलेबी बनाओगे. और जलेबी बनाने का प्रोसेस होता है तो उसको समय लगता है, मगर तब तक क्या होता है, तब तक जो आपकी इच्छा है वो भगवान के इसमें सतत मनन करती रहेगी कि मुझे भगवान के लिए पहले जलेबी बनानी है, उसके बाद में मुझे ग्रहण करनी है. तो दैट प्रोसेस विल इंक्रीज योर संयम, मतलब जो आपके अंदर पेशेंस इंक्रीज करेगा. एंड भक्ति इज ऑल अबाउट पेशेंस. दिस इज व्हाट मतलब आई कुड गेट इट फ्रॉम द लेक्चर व्हाट ही सेड कि भाई हम जो ये अपने इंद्रियों को, जैसे भी सूरत माधव ने भी बताया कि हमको इंद्रियों को जो है अपने सेंसेस को किसमें एंगेज करना है, इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड. सो दिस इज सर्विस ऑफ लॉर्ड. भौतिक चीजें सब चीज है. वो चाकू है, चाकू बच्चे को खेलने के लिए नहीं देना है, मगर चाकू का इस्तेमाल तो करना है हमको. तो कैसे करेंगे? तो जिस चीज को सब्जियां काटने में है उसका जो हायर वर्जन है फॉर द ऑपरेशंस नाइफ इज यूज्ड. सो सिमिलरली, मगर वो चीज है उसको बच्चे को नहीं देना, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए, वो बच्चा उठाएगा और उसके साथ में खेलेगा और अपने आप को जो है अपने आप को क्षति पहुंचाएगा. मगर वही चीज को अगर हम डिले करेंगे, जिस हिसाब से मैंने बताया कि भगवान को याद करते करते कि भाई ठीक है जलेबी बनानी है, जलेबी मैंने खानी है, तो मतलब जलेबी पहले बनानी है, बनाने के ठाकुर जी को ऑफर करनी है और ठाकुर जी की जो कृपा मिलेगी प्रसाद के माध्यम से वो मुझे जो है ये उसका आनंद भी लेने देगी. और ऐसा जब सिचुएशन आएगा ना, धीरे धीरे हमारे अंदर संयम आएगा और जो हमारी ये चीजें हैं मतलब उत्तेजित होकर तुरंत कोई काम करना, तो वो हमारी जो है आदतें और ये इसके ऊपर कंट्रोल आ जाएगा. हरे कृष्ण. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच प्रभु जी. थैंक यू गोपी प्रभु